صبح کے وقت مکہ کے کفار کو معلوم ہوا کہ کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی اور چلے گئے ہیں۔ یہ ایک نئی بات تھی۔ اس سے مکہ کے کافروں میں ہلچل مچ گئی۔ انہیں خیال ہوا کہ مسلمان حبشہ میں جا کر ہمارے معبودوں کی برائیاں بیان کریں گے، اس سے ان کے مذہب کی بے حد توہین ہوگی۔ وہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور اگلے پروگرام پر مشورہ کرنا شروع کیا۔ طے ہوا کہ 60-70 بہادر جوانوں کو مہاجروں کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ کیا جائے۔ اگر مہاجر واپس آنے پر تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سب کو قتل کر ڈالا جائے۔ 70 آدمی بھیج دیے گئے۔ یہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر تیزی سے چلے، لیکن جب تک جدہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ اب حبشہ جانے کا کوئی جہاز نہیں ہے۔ جو جہاز بندرگاہ پر کھڑا تھا وہ مہاجروں کو لے کر جا چکا ہے۔ کفار مکہ کو بڑا غصہ آیا، پر وہ کر ہی کیا سکتے تھے۔ مہاجر ان کی پکڑ سے باہر ہو گئے تھے۔ یہ غصہ اب ان مسلمانوں پر اور زیادہ نکلنے لگا جو مکے میں موجود تھے۔ انہوں نے اب ان کی زبردست نگرانی شروع کر دی اور ان پر ظلم کی چکی بھی تیز کر دی۔ درد بھرے ظلم و ستم سے مسلمان اتنے تنگ آ گئے کہ ان کا مکہ مکرمہ میں سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ اس لیے تنگ آ کر چپکے انہوں نے بھی خفیہ طور پر ہجرت شروع کر دی۔ 2-2 4-4 کر کے روزانہ رات کو چھپ کر نکل جاتے اور جدہ میں پہنچ کر جہازوں کے انتظار میں چھپے رہتے، اور جب کوئی جہاز جانے لگتا اس پر بیٹھ کر حبشہ روانہ ہو جاتے۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضرت جعفر بن ابو طالب نے بھی ہجرت کی، اور وہ بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس حبشہ پہنچ گئے۔ اس طرح 70-80 مسلمان ہجرت کر کے حبشہ میں جا پہنچے اور وہ نہایت اطمینان سے زندگی بسر کرنے لگے۔ دشمنوں کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان حبشہ میں خوشحالی کی زندگی جی رہے ہیں تو ان کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ انہوں نے فوراً مجلس شورا بلائی۔ سبھی بڑے لوگ جمع ہو گئے۔ زوردار تقریریں ہوئی۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اگلا گیا۔ آخر میں یہ بات طے پائی کہ نجاشی کے حضور میں قیمتی تحفے لے کر وفد حاضر ہو، جو بادشاہ کے درباریوں کو ہموار کر کے مسلمانوں کی واپسی کی مانگ کرائے۔ مکہ کے قریش اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بیچ پہلے ہی تجارتی تعلق تھے، اس لیے انہیں پورا یقین تھا کہ حبشہ کا شاہ ان بے بس و بیچارے مسلمانوں کو ان کے وفد کے ساتھ بھیج دے گا۔ وفد تیار کیا گیا۔ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وفد کا سردار بنایا گیا اور قیمتی تحفے اور سامان دے کر انہیں روانہ کر دیا گیا۔ یہ وفد بڑی شان کے ساتھ جدہ کی اور روانہ ہوا۔ جدہ سے جہاز میں بیٹھ کر حبشہ جا پہنچا۔ چونکہ شاندار وفد تھا اس لیے پورے حبشہ کو اس کی خبر ہو گئی۔ مظلوم مسلمانوں کو معلوم ہوا تو وہ گھبرا گئے اور انہیں ڈر ہوا کہ کہیں نجاشی ان کو واپس جانے پر مجبور نہ کرے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ حبشہ کے بادشاہ نے اگر ہمیں وفد کے سپرد کیا تو ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے، لیکن مکہ واپس نہ جائیں گے۔ قریش کے وفد نے درباریوں کو تحفے تحائف دے کر اس بات پر تیار کر لیا کہ دیش چھوڑ کر آنے والے مسلمانوں کو واپس مکہ جانے پر آمادہ کریں۔ انہوں نے وعدہ بھی کر لیا۔ اس طرح نجاشی کے دربار میں وفد کی پہنچ ہو گئی۔ نجاشی نے شاندار طریقے سے دربار سجایا۔ جب وفد دربار میں پہنچا تو دربار کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا۔ نجاشی کے سامنے سلام کے لیے جھک گئے۔ سلام کر کے تحفے پیش کیے۔ نجاشی نے پوچھا، عربو، تم میرے دربار میں کس لیے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ عمرو بن عاص نے کہا، ہماری قوم نے ایک جٹ ہو کر ہمیں آپ کے حضور میں اس لیے بھیجا ہے کہ حضور سے عرض کریں کہ ہمارے شہر میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ایسا مذہب جو کسی اور مذہب سے میل نہیں کھاتا، بالکل نیا مذہب۔ ہمارے شہر کے کچھ نادان لوگوں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ ہم نے جب ان پر زور کیا
कि इस नए मजहब को छोड़ दें, तो वे बेवकूफ़ वहाँ से भागकर हुजूर की हुकूमत में आ गए हैं। हम उनको वापस ले जाने के लिए हुजूर के दरबार में हाजिर हुए हैं। नजासी को उनकी बातों को सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने कहा, नया मजहब ईजाद किया है, लोग जादू के शिकार हो गए हैं, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। अम्र बिन आस ने कहा, जनाब, हमको खुद अफसोस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा जादूगर है, नऊज़ुबिल्लाह, जो उससे एक बार बात कर लेता है वो उसका आशिक हो जाता है। उसने हमारी कौम में एक नया फितना पैदा कर दिया है, नया मजहब ईजाद किया है, हुजूर उनको बुलाकर मालूम कर लें। नजासी ने कहा, मैं जरूर मालूम करूँगा, मुझे उनके देखने का शौक है, वे अपने आप को क्या बताते हैं। अम्र बोला, वे खुद को मुसलमान कहते हैं, भला मुसलमान भी किसी मजहब का नाम हो सकता है। अब वजीर आजम उठा, ये बूढ़ा आदमी था। उसने कहा, हुजूर, ये मुसलमान नए मजहब के मानने वाले हैं, मैं इनसे मिल चुका हूँ। वे अजीब अकीदा रखते हैं, ना यहूदी, ना ईसाई, ना बुत परस्त। मुझे डर है कि कहीं अपने नए मजहब की तबलीग मुल्क हबसा में न कर दें, इसलिए मेरे ख्याल में उन तमाम लोगों को इस वफ्द के साथ रवाना कर दिया जाए और अपने मुल्क और अपने कौम को उनकी शरारतों से बचाएं। नजासी ने कहा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अच्छा मुसलमानों को बुलाओ। वजीर ने अरमल की तरफ इशारा किया। वो दरबार से बाहर आया, सिपाहियों को साथ लिया और मुसलमानों की ओर चल पड़ा। मुसलमानों को पहले ही डर था, वो सहम रहे थे कि अब क्या होता है। मक्का में उन पर इतनी सख्तियां हुई थी कि वे वहां जाने पर मौत को तरजीह देते थे। उन्होंने आपस में तय कर लिया था कि मर जाएंगे मगर यहाँ से हरगिज न जाएंगे। जब ईसाई सिपाह सालार उनकी तलबी के लिए आया तो सब लोग उसके दरबार में पहुँचे। सब ने बादशाह को सलाम किया। नजासी ने उनको बैठने के लिए कुर्सियां डलवाईं। जब सब बैठ गए तो नजासी ने पूछा, क्या तुमने कोई नया मजहब ईजाद किया है जो ईसाइयत और बुत परस्ती दोनों के खिलाफ है? हजरत जाफर जवाब देने के लिए खड़े हुए। आपने फरमाया, ऐ बादशाह, ऐ लोगों, हम लोग जाहिल परस्त थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दा खाते थे, हराम हलाल की कोई तमीज न थी, बदकारियां करते थे, पड़ोसियों को सताते थे, भाई भाई पर जुल्म करते थे और हर मजबूत हर कमजोर को पीस डालता था। गोया दुनिया भर के ऐब हम में थे। खुदा ने हम पर रहम किया और अपने प्यारे नबी को हम पर भेजा। उस नबी की शराफत, दयानत और सदाकत को हम खूब जानते थे। उसने हमको इस्लाम की दावत दी, हमें सिखाया कि हम पत्थरों को पूजना छोड़ दें, हमेशा सच बोलें, खोरेजी न करें, यतीमों का माल न खाएं, पड़ोसियों को आराम दें, नमाज पढ़ें, रोजे रखें, ज़कात दें। हमने उसकी दावत मानी, खुदा पर ईमान लाए, शरारत और बुत परस्ती छोड़ दी, बदकारियों से तौबा की। इस जुर्म में हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हम पर सख्तियां करने लगी। हम पर ऐसे ऐसे जुल्म किए गए जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें मजबूर किया गया कि हम फिर तबाही के गड्ढे में गिर पड़े। हमने तंग आकर पनाह ली। अब ये हम पर फिर जुल्म व सितम करने के लिए यहाँ से ले जाना चाहते हैं। नजासी और तमाम दरबारी पूरी तवज्जो से हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बातें सुनते रहे। जब खामोश हुए तो नजासी ने कहा, जो बातें तुमने बयान की हैं वे तो कुछ बुरी नहीं। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आप इनसे पूछिए कि क्या हम इनके गुलाम हैं। अब मुसलमानों की बात नजासी के वास्ते से अम्र बिन आस से शुरू हुई। अम्र ने जवाब दिया, इसमें से एक भी गुलाम नहीं है, सब के सब आजाद हैं। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर पूछा, हम में से किसी ने किसी का खून किया है? तुम्हारा दामन इस इल्जाम से भी पाक है। जवाब मिला, हम में से किसी ने किसी का माल चुराया है? नहीं। हम में से कोई आपका या आपकी कौम के किसी आदमी का कर्ज खाए हुए है? ये बात भी नहीं है। क्या तुम्हारी दिली मनसा ये नहीं है कि हम तुम्हारे मजहब में लौट आएं?
बेशक हम यही चाहते हैं, क्या तुम बुतों को नहीं पूजते हो? हमारे बाप दादा का मजहब यही है, तुम्हारे बाप दादों का भी मजहब यही था, अब तुमने नया दीन अपना लिया है। जब नजासी ने देखा कि बात बढ़ती जा रही है तो दोनों को खामोश रहने का हुक्म दिया। दोनों चुप हो गए। नजासी ने हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, तुम्हारे नबी पर कोई किताब भी नाजिल हुई है? हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, हाँ, हमारे मोहतरम नबी पर कुरान मजीद नाजिल हो रहा है। उसने फिर पूछा, तुम्हें कुरान का कोई हिस्सा याद है? याद है तो सुनाओ। तमाम मुसलमान हाथ बांध कर खड़े हो गए। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू की। आपने बड़ी अच्छी आवाज में पढ़ना शुरू किया, जिसमें कहा गया था, तेरे परवरदिगार की रहमत बंदा जकरिया को याद करती है। जिस वक्त उसने अपने पालनहार को धीरे से पुकारा, उसने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरी हड्डियां सुस्त हो गई हैं, मेरे सर ने बुढ़ापे का सोला मारा है, और मेरे परवरदिगार, मैं तुझे पुकारने में बदनसीब न था, और मैं डरता हूँ कि मेरे कोई वारिस नहीं है, मेरी औरत बांझ है। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे औलाद बख्श ताकि मेरा वारिस हो, और ऐ मेरे परवरदिगार, उसे पसंदीदा कर। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु इतनी अच्छी आवाज में कुरान मजीद पढ़ रहे थे कि तमाम दरबार उस प्यारी आवाज से भर गया। नजासी, वजीर, दरबारी सभी सर झुकाए बैठे बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। नजासी की शान कह रही थी कि वे बहुत कुछ जफ्त कर रहा है। उससे न रहा गया और बेकाबू होकर उसके आंसू जारी हो गए। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ और आयतें पढ़कर खामोश हो गए। देर तक आपकी आवाज गूंजती रही। कुछ देर बाद नजासी ने सर उठाया, रेशमी रुमाल से आंसू पोंछा और कहा, खुदा की कसम, इस कलाम से सच्चाई की बू आती है। ये ऐसा ही कलाम मालूम होता है जैसा कि तौरात में है। मैं इकरार करता हूँ कि ये कलाम इंसान का कलाम नहीं है, बल्कि ये खुदा का कलाम है। नजासी के इन लफ्जों से जहां मुसलमान इसलिए खुश हुए कि उन्हें उम्मीद हुई कि बादशाह नजासी उन्हें कुरैश के वफ्द के हवाले न करेगा, वफ्द वालों को ये डर हुआ कि शायद वे यहाँ से नाकाम हो जाएंगे। अम्र बिन आस ने नजासी से कहा, हुजूर, गजब तो यही है कि जब वो कलाम पढ़ते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लिख कर देता है तो सुनने वाले पर बड़ा असर होता है। ये कलाम खुदा का कलाम नहीं है, बल्कि मोहम्मद का कलाम है। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अम्र की इस बेहुदा बात पर बड़ा गुस्सा आया, और गुस्से की वजह ये थी कि अम्र अच्छी तरह जानता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ हैं, लेकिन नजासी को धोखा देने के लिए अब कह रहा था कि वो लिख कर देते हैं। उन्होंने जोश में आकर कहा, अम्र, सच बोलो, क्या तुम नहीं जानते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी यानी अनपढ़ हैं? नजासी भी बोल पड़ा, लगता है तुम झूठ बोलते हो। जब तुम इस बात के कायल हो कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो एक अनपढ़ का कलाम इतना जोरदार हो सकता है? ताज्जुब ने तुमको अंधा कर दिया है, तुम सब जानते हुए भी अनजान बनते हो। अम्र डर गया। उसे डर हुआ कि शायद नजासी उसे और उसके साथियों को दरबार से न निकलवा दे। उसने फौरन कहा, एक बात कहने की रह गई है। नजासी ने पूछा, वो क्या है? अम्र ने कहा, ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बुरी बुरी बातें कहते हैं, उन्हें खुदा का बेटा नहीं मानते। एक पादरी ने खड़े होकर अम्र के इन लफ्जों की तायीद की और कहा, ये बात बिल्कुल सही है, ये नए मजहब के मानने वाले हैं, खुदावंद हजरत ईसा की शान में गुस्ताखी की बातें करते हैं। ये सुनकर नजासी को गुस्सा आ गया। उसने हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि क्या ये सही है कि तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते थे? हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी हिम्मत से काम लेते हुए जवाब दिया, ये बात भी गलत है। हम ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं और उनकी शान में वही कहते हैं जो खुदा ने उनकी शान में फरमाया है
क्या है? नजासी ने कहा। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और उसका हुक्म है उनको मरियम की तरफ डाल दिया और रूह की तरफ से हैं। नजासी ने कहा, खुदा की कसम, इंजील में भी यही लिखा है, तुम सच कहते हो। अब अम्र को यकीन हो गया कि नजासी मुसलमानों को उनके हवाले न करेगा। उसने कहा, बादशाह, हमारे ये आदमी हैं जो हमसे, अपनी कौम से और अपने मुल्क और अपने माबूदों से बागी होकर भाग आए हैं, इसलिए आप इनको हमारे हवाले कर दें, यही बेहतर है। नजासी को जोश आ गया, बोला, हरगिज नहीं, उन्हें मेरे मुल्क से कोई ताकत नहीं ले जा सकती। तुम मुझको लालच देने के लिए ये तोहफे लाए हो, इन तोहफों को वापस ले जाओ और कुरैश के सरदारों से कह दो कि हबशा का बादशाह एक मुसलमान को भी तुम्हें वापस न करेगा। और ऐ मुसलमानों, तुम आजाद हो, पूरी बेफिक्री से तुम यहाँ रहो, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम मुसलमानों ने नजासी का शुक्रिया अदा किया। वो नजासी के दरबार से विदा होकर अपने ठहरने की जगहों पर चले गए। कुरैशी वफ्द तमाम तोहफों को लेकर बड़ी बददिली से विदा हुआ और उसी दिन जहाज पर बैठकर जद्दा की तरफ रवाना हो गया। मक्का वालों को पूरा यकीन था कि हबशा का बादशाह नजासी मुसलमानों को वफ्द के हवाले कर देगा। उन्होंने तय कर लिया था कि अब तमाम मुसलमानों को कैद कर देंगे ताकि वे बाहर न जा सके, न किसी से मिल सके। चाहे तो ये थे कि तमाम मुसलमानों को कत्ल कर डालें, लेकिन मुसलमान किसी एक कबीले से ताल्लुक न रखते थे, इसलिए उन्हें ये अंदेशा था कि अगर एक कबीला भी किसी एक मुसलमान के खून का बदला लेने के लिए उठ खड़ा हुआ तो फिर तमाम कबीलों में लड़ाई छिड़ जाएगी। और चूंकि आए दिन की लड़ाइयों ने उनका तमाम कस बल निकाल दिया था, इसलिए वे किसी एक लड़ाई के लिए भी तैयार न थे जिससे कि तमाम अरब में आग लग जाए और अरब का अमन व अमान खाक में मिल जाए। इस डर से वे मुसलमानों को कत्ल करने में हिल इज्जत कर रहे थे। उन्होंने ये तय कर लिया था कि जितने मुसलमान हैं उन सबको एक जगह जमा करके कैद कर दें और बहुत कड़ाई से उनकी निगरानी की जाए। ये ख्याली पुलाव पका ही रहे थे कि वफ्द आ गया और उसने अपने नाकामी की पूरी दास्तान कुरैश को कह सुनाई। वफ्द के नाकाम आने से मक्का के तमाम काफिरों को बड़ा रंज हुआ। हबशा के बादशाह नजासी पर भी बड़ा गुस्सा आया, पर उनमें इतनी ताकत न थी कि हबशा के बादशाह पर चढ़ाई कर देते और उससे तलवार के बल पर अपनी मांग मंजूर करा सकते, इसलिए खामोशी को ही बेहतर समझा। उन्हें ये डर था कि शायद हबशा के मुसलमान मसीही बादशाह नजासी को मक्के पर न चढ़ा लाए, इसलिए उन्होंने खुफिया तरीके से लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी और जद्दा में सुराग रसा भेज दिए ताकि जब वे ईसाई फौज को आता देखें तो मक्के वालों को खबरदार कर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी सीरीज सुनने के लिए हमारे चैनल पेजेस ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर करें।